students, welcome back to Abhigyan Academy. Today, we will be having a video in the continuation of the topic Mauryan Empire, which is an important topic from ancient history of India and very important from an examination point of view. A very repetitive topic, as I've already said it, and I would like to reiterate it again. So, we'll continue with the remaining topics in this video. First, we will talk about the literary sources of Mauryan Empire. What are the literary sources like books and writings and articles through which we can study and understand the Mauryan Empire more? Basically, उस जमाने की लिखी हुई चीजें जिसको पढ़ के जो टेक्स्ट बुक में लिखा हो, किसी पिलर में इंस्क्रिप्शन में लिखा हो, ऐसे सोर्सेज जो पढ़ के हमें समझ में आए कि वो जमाना कैसा था. The first and the foremost and most important one, as I have said yesterday also, the Arthashastra, written by Kautilya or Chanakya or Vishnugupta, whatever you would like to call him. He goes by many names, but he is the greatest strategist that India has ever had. So, the Arthashastra written by Kautilya, it's a very great book on economics, on statecraft, as to how to run a state properly, how to run a political system, and also regarding the military strategy. ठीक है कि कैसा मिलिट्री स्ट्रेटेजी होने से आप खुद को भी डिफेंड कर पाओगे और अपने शत्रु को भी डरा के रख पाओगे. द नेक्स्ट सोर्स इज द इंडिका बाय मेगास्थेन्स. नाउ हु इज मेगास्थेन्स? मेगास्थेन्स वाज अ ग्रीक ट्रेवलर who visited India from Greece during the time of Chandragupta Maurya. ठीक है? In that book, he spoke about whatever kind of society he saw during the Mauryan Empire, and he also speaks about that what kind of administration the Mauryan Empire was following at that time, जब वो आया था इंडिया. Next, the edicts of King Ashoka. As we see that King Ashoka, he fought the war of Kalinga because Kalinga जो था वो पूरे के पूरे जो मौर्यन वंश का एक बहुत बड़ा सपना था. It was a great ambition, and for Ashoka himself it was a very big ambition, and defeating Kalinga was tough. But Ashoka, he went on a full onslaught. He went on a complete rampage against the Kalinga Empire. He did a complete massacre in that empire to win it over, to annex it in his territory. Now, what happened is that उस युद्ध के बाद Ashoka saw the kind of violence and the bloodshed that had occurred because of him, and he felt really guilty about it. And then he had a change of his heart, and he decided that he will never do and repeat this violence again, and rather he would embrace the path of ahimsa or non-violence. And since he had embraced Buddhism, he started to follow the path of ahimsa, which was iterated in the Buddhist religion. Okay? So Ashoka, what did he do? To talk about peace, to talk about the good principles of governance, to talk about tolerance, to talk about brotherhood, to talk about the teachings of Buddha, he set up many edicts, rock edicts and pillars in different parts of his kingdom, and he wrote down different messages on all these edicts. He inscribed those messages as inscriptions so that travelers and people living nearby could read and be aware of the message that the king was trying to spread. तो जो अशोकन रॉक एडिक्ट्स है, जिसको एम्परर अशोक ने खुद बनाया है, उसको पढ़ के हमें समझ में आता है कि उस टाइम गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या थे राजा के, and it also we understand that he was trying to promote Buddhism. Then there is this book called Mudra Rakshasa written by Vishakha इस बुक में क्या है? This book talks about that how चंद्रगुप्ता ने कौटिल्य और चाणक्य के मदद से जो धनानंद को ओवरथ्रो किया और वो राजा बन गए. That whole story is described in the Mudra Rakshasa. Then if we look at Buddhist texts like the Jatakas, the Divya Vadana, the Ashoka Vadana, these are different Buddhist texts. So even in Buddhist texts, we see how the Mauryan Empire was, especially the time of Ashoka. Why? Because Ashoka himself was a Buddhist, and because of that, many Buddhist texts, many Buddhist inscriptions talk about him, and hence they give an idea कि उस टाइम का राज्य एम्पायर कैसा था. उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं
दीपवंसा और महावंसा, ये सब श्रीलंकन सोर्सेस है, क्योंकि अशोका ने श्रीलंका में बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज और नन्स भेजे थे, इंक्लूडिंग हिज ओन सन एंड डॉटर, ठीक है, हु हैड एम्ब्रेस्ड ननहुड एंड मॉन्कहुड. तो इवन इन श्रीलंकन पाली in chronicles, like the Sri Lankan chronicles are written in a Pali language, ठीक है. So in that also we find description of Ashoka and the Mauryan Empire. Now let's talk about Ashoka's Dhamma. Dhamma हम पाली में बोलते हैं. Dhamma means dharma. संस्कृत में जो धर्म होता है, वर्ड धर्म, that is called Dhamma in Pali. तो अब जैसे कि मैंने कहा, अशोका ने कलिंग वार के बाद नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्रेम, यू नो, सर्विस, कंपैशन, ये सब रास्ते अपना लिए थे कि अब मैं और वायलेंस नहीं करूंगा. आई विल बी अ गुड किंग, समवन दैट पीपल कैन लुक अप टू, समवन हु इज पीसफुल एंड राइटियस. सी, धर्मा डज नॉट मीन रिलीजन द वे वी से इट नाउ. धर्म 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 मतलब रिलीजन. धर्मा मीन्स द रियल मीनिंग ऑफ धर्मा, विच कम्स फ्रॉम संस्कृत और पाली और प्रकृत. The meaning of dharma means to do your duty. This is my dharma, means this is my duty. It is my righteous duty. ये सही चीज है और ये मुझे करना है. That is what dharma means. It does not mean religion essentially. But ये evolve ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं. So what was Ashoka's dharma? What are the principles of dharma or duties, righteous duties that he followed? First is paternal kinship. इसका मतलब है अशोका ये सोचते थे कि एज अ किंग, अशोका के जो भी सब्जेक्ट्स है, his subjects are like his own children and he as a king is like their own father. तो एक फादर अपने बच्चों को जैसे प्यार से ट्रीट करता है, उसका भला सोचता है, अशोका ने भी कहा कि एज अ किंग मैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए एक पिता समान हूं, and I will look after them and love them and care for them and think about their welfare just like my own children. Then he also set up edicts. Edicts में what did he advocated about different things. जैसे जो edicts उन्होंने खड़े किए, रॉक edicts, उसमें he talked about many different principles of dharma, the good things that we should follow in life, like advocated serving parents, कि हर इंसान को अपने पेरेंट्स को अच्छे से सर्व करना चाहिए. Everyone should revere their teachers, never disrespect your teachers. Everyone should practice ahimsa. Everyone should be non-violent. किसी के साथ मारपीट, दंगा, झगड़ा नहीं करना चाहिए. And we should be truthful. कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए. We should be honest. We should always speak the truth. Then prohibitions. He also prohibited certain stuff because he thought that doing these things are wrong. Adharma. Adharma means wrong. Like he banned animal slaughter and sacrifice. He said कि जानवरों को मारना, बेजुबानों को मारना कोई नाचने की चीज नहीं है. You should not kill them. You should practice ahimsa. He talked about humane treatment. कि जानवर हो, कोई जेल का कैदी हो या घर का नौकर हो, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड ह्यूमेनली. ऐसा नहीं कि यार ये एक छोटे पोजीशन पे है तो मैं इसके साथ जो मर्जी करूंगा, ठीक है. देन रिलीजियस टॉलरेंस. ही सेड दैट, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया हैड मेनी रिलीजियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, थ्री ऑफ देम वर देयर मेजरली, एंड लिटिल बिट ऑफ अजीविकास एज वेल. सो ही सेड दैट रिलीजियन अलग अलग है, सबके आइडियोलॉजीज अलग अलग है, but everybody is right and wrong in their own ways and we should always tolerate each other. मतभेद नहीं रखने चाहिए. Then conquest through dharma. He said कि अगर conquest करना है, किसी को हराना है, किसी के ऊपर जीत हासिल करना है, then do it through righteous ways. Do it through diplomacy. Do it through arguments rather than going into a full-scale violent war. He talked about, and he did missions abroad. जैसा कि मैंने कहा, उनके खुद के बेटे महेंद्र और उनकी खुद की बेटी संघमित्र, उन दोनों के इंक्लूडिंग उन्होंने बहुत सारे मॉन्क्स और नन्स को एज मिशनरीज भेजा था श्रीलंका में टू स्प्रेड बुद्धिज्म. एंड अशोका के जो एडिक्ट्स है वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं. सम आर रिटन इन पाली, प्रकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, एरामिक, ग्रीक, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. जैसे अब जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो एडिक्ट्स है वो खरोष्टी में लिखे हुए हैं. व्हाई? बिकॉज वहां से जो लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से जो आते हैं, या फिर ग्रीक में लिखे हुए हैं, क्योंकि द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया
saw people coming outside India who understood only Kharosthi or Greek. So for them, understanding Sanskrit or Pali was difficult. Whereas in Hindu dominated areas, जहां संस्कृत का बोलचाल ज्यादा था, there his edicts were written in Sanskrit. जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह थे, there he wrote it in Pali. So depending upon कौन सा जगह है, कैसी भाषा है, he made those languages adjusted according to that. Edicts of Ashoka. Now the thing is that कि अशोका के edicts actually 1800s तक सबको ये लगता था कि अशोका जैसा एक great empire is just a myth. उसने जो जो किया, all of it is like a myth. But James Prinsep, he is a British antiquary, a colonial administrator of India during the British Raj in India. He was the first person in the year 1837 जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को ढूंढा और उनको डिसाइफर किया. डिसाइफर किया एज इन उसका मीनिंग ढूंढ के निकाला. सो ही फाउंड 33 इंस्क्रिप्शंस इन टोटल. 33 इंस्क्रिप्शंस उन्होंने निकाले ढूंढ और उनको क्लासिफाई किया इनटू मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, major pillar edicts and minor pillar edicts. अब there are 14 major edicts. 14 मेजर एडिक्ट्स है. अब सबका याद रखना तो मुश्किल है, तो जो इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स है उनका हम याद रखते हैं. रॉक एडिक्ट 1 में क्या लिखा है? रॉक एडिक्ट 1 एनिमल सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट करता है कि जानवरों की हत्या करना बंद करो. रॉक एडिक्ट 3 जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, कहता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो. रॉक एडिक्ट 5 ये कहता है कि जो स्लेव्स है या सर्वेंट्स है तुम्हारे पास, उसको जानवरों की तरह घटिया तरीके से ट्रीट मत करो. उसको भी वो भी एक इंसान है. ट्रीट हिम विद कंपैशन विद पीस. रॉक एडिक्ट 7 कहता है कि जितने भी अलग अलग सेक्ट्स है, रिलीजियंस है, हैव टॉलरेंस फॉर ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू डू वेलफेयर फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन दी एंड वो है इंसान ही. रॉक एडिक्ट 8 कहता है कि जब अशोका ने बोध गया विजिट किया था, जहां पे वो बोधि ट्री है अंडर विच बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट, when he visited that place for the first time, that particular instance of his first visit there is mentioned in Rock Edict 8. In Rock Edict 9 he condemns popular ceremonies. जो कुछ पॉपुलर सेरेमनीज थे उस टाइम पे which were not good for the society, he condemned them. In Rock Edict 10 he disapproves of individuals desire, कि जो लोगों का एक्सेसिव डिजायर होता है ना, जो ग्रीड होता है कि ग्लोरी चाहिए, फेम चाहिए, उसके लिए मैं किसी भी एक्सटेंट तक चला जाऊंगा, दैट डिजायर वाज डिसअप्रूव्ड बाय हिम. देन कम्स रॉक एडिक्ट 12. रॉक एडिक्ट 12 में वो औरतों के वेलफेयर का बात करते हैं कि औरतों का सम्मान करो, उनका भला करो. एंड इन रॉक एडिक्ट 13 he talks about the Kalinga victory and also the horrors that he had caused and how he has changed after that. Now अब माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है, माइनर रॉक एडिक्ट्स इंडिया में भी है, अशोका के अफगानिस्तान में भी है, क्योंकि वो भी एक टाइम पे अशोका के किंगडम का ही पार्ट हुआ करता था. नाउ इट्स अ डिफरेंट कंट्री. सो देयर आर 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स. ठीक है, देयर आर 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स. एंड इन माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोक ने, महाराजा अशोक ने अपना नाम बस 4 ही एडिक्ट्स में यूज किया. बाकी एडिक्ट्स में उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया. व्हिच आर द 4? मस्की, ब्रह्मगिरी विच इज इन कर्नाटका, गुज्जरा विच इज इन मध्य प्रदेश, एंड नेट्टूर इज इन आंध्र प्रदेश. अब रॉक एडिक्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट वाले रॉक एडिक्ट्स है वो देख लेते हैं कौन से वाले. सबसे पहला है माइनर रॉक एडिक्ट 1. माइनर रॉक एडिक्ट 1 में लिखा है कि 2.5 साल पावर में रहने के बाद, अशोका जब पावर में आए, पावर में आने के 2.5 इयर्स के बाद ग्रेजुअली अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया. माइनर रॉक एडिक्ट 3 में जो बुद्धिस्ट संघ है, अशोका ने बुद्धिस्ट संघ के लिए अपनी ग्रीटिंग्स दी है, उनके लिए अपना रेस्पेक्ट जताया है. उनका जो बुद्धा के धर्मा में जो बिलीफ है उसको बेसिकली रीइटरेट किया है. और उसके साथ साथ 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स या नन्स होंगे उनको ये 6 टेक्स्ट जरूर पढ़नी चाहिए.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स कितने हैं? 7 पिलर एडिक्ट्स है इन टोटल। ठीक है, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो पिलर एडिक्ट होता है वो एक मोनोलिथ होता है। मोनोलिथ का मतलब होता है कि वो मोनो मतलब वन, लिथ मतलब स्टोन। तो पिलर एडिक्ट्स आर मोनोलिथ्स। दिस मीन्स दैट these pillars are carved out of one single stone, अलग अलग पत्थर जोड़ के नहीं बनाए। ठीक है, और उनका जो हाइट है उसका 50 फीट तक के हाइट के पिलर्स है ये। और जो वेट है, द वेट गोज एज मच एज 50 टन्स। तो बहुत बड़े बड़े पिलर्स है। मटेरियल कौन सा यूज किया है? अशोका यूज्ड चुनार सैंडस्टोन टू बिल्ड दिस पिलर्स। एंड ये जो पिलर एडिक्ट्स है, इसमें अशोका ने मोस्टली पाली और प्रकृति यूज किया है टू राइट हिज मैसेजेस। और एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस पिलर एडिक्ट्स इज द लायन कैपिटल इन सारनाथ। सारनाथ इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। सारनाथ में जो पिलर एडिक्ट है उसके ऊपर जो कैपिटल है, कैपिटल एज इन पिलर का जो सर है, उसमें एक 4 हेडेड लायन है। एंड वही 4 हेडेड लायन आज इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी तो अकेला कर नहीं सकता इतने बच्चे का। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, होम, डिफेंस, फाइनेंस, सिविल एविएशन, इंटर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation, electronics and communication tech, they're different, right? So they also have different departments. One department was, अब देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट का हेड कौन था। द फर्स्ट इज पुरोहित, वो चीफ प्रीस्ट था, वो सारे प्रीस्ट का हेड था। देन सेनापति, सेनापति as the name says already suggest, he was the head and commander, the general of the army. Then Samarth, Samarth was the revenue collector, जो टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से। Then the Pratihara, Pratihara was the gatekeeper, gatekeeper as in the gatekeeper of the fort, the palace in which the king lived in. Durgapal, Durga means, see, Durga means fort, Pal means guard. So फोर्ट का जो गार्ड होता था, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड एज दुर्गपाल। न्यायाधीश, न्याय इट मींस जस्टिस, तो न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम हिंदी में न्यायाधीश ही कहते हैं। प्रशस्त, प्रशस्त वाज द हेड ऑफ द पुलिस, जो बेसिकली सिविल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। देन वमिशिका, वमिशिका होते थे हेरेन गार्ड्स के लीडर। Now there are two bodies mentioned here. The first is परिषद। परिषद एक बॉडी था जो शुरू शुरू में एक डेमोक्रेटिक बॉडी हुआ करता था, बट बाद में क्या हुआ, ये परिषद एक एक्सक्लूसिव काउंसिल बन गया। ये डेमोक्रेसी उसमें रहा नहीं। इट ओनली इंक्लूडेड पीपल हु वर मोर कंसर्न्ड एंड लर्नड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। देन सभा, सभा का कोई श्योरिटी नहीं है, बट जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, सभा श्योरिटी तो है नहीं, बट देयर इज अ चांस दैट सभा माइट हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है, क्योंकि पतंजलि जो सेज थे, ही रेफर्ड की चंद्रगुप्त के टाइम पे सभा हुआ करता था। सो देयर इज अ चांस दैट इट वाज देयर। देन देयर इज द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो शहर था, शहरों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता था। ईच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वाज हेडेड बाय अ स्थानिका, एंड स्थानिका यूज्ड टू वर्क अंडर द नगरिका। ठीक है, पूरे शहर का जो हेड है वो है नागरिका, और शहर के अंदर 4 डिविजन्स, हर डिवीजन का हेड होता है स्थानिका। लेट्स टॉक अबाउट सिविल, अबाउट द कोर्ट्स। जो सिविल केसेस के कोर्ट्स थे, दे वर कॉल्ड एज धर्मस्थिवन। ठीक है, और जो क्रिमिनल केसेस के क्रिमिनल कोर्ट्स थे, दे वर नोन एज कंटक शोधना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वार ऑफिस, कि वार हो गया तो क्या होगा। वार ऑफिस में 30 मेंबर्स हुआ करते थे। ये 30 लोग मिलके पूरी फौज संभालते थे। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारा आर्मी देख लो, इन्फेंट्री होता है,
आर्टिलरी होता है, टेक्निकल होता है, फ्लाइंग कोर होता है, मेडिसिन होता है, अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अशोका के आर्मी में 6 डिपार्टमेंट्स थे और 6 डिपार्टमेंट्स के लिए 6 बोर्ड्स थे एंड द टोटल 30 मेंबर्स इन द वार ऑफिस, उनको हर 6 बोर्ड में 5 ईच करके डिवाइड कर दिया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी कि इकोनॉमिक्स कैसा था उस टाइम पे। फर्स्ट वी हैव टैक्सेस। तो टैक्सेस दो टाइप के थे, एक था बलि। बलि वाज अ रिलीजियस ट्रिब्यूट दैट वाज पेड बाय पीपल इन द नेम ऑफ गॉड, एंड देन देयर वाज भाग। भाग वाज द एग्रीकल्चरल टैक्स कि जो जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करेगा उस पर उतना टैक्स लग जाएगा। बट टैक्स में एग्जेम्पशंस क्या थे? ब्राह्मण, औरतें, बच्चे, जो हैंडीकैप लोग हैं, विकलांग लोग, देन किंग्स मैन मतलब राजा के जो ऑफिशियल्स है उनको टैक्स से एग्जेम्पशन था कि उनको टैक्स नहीं देना। एग्रीकल्चर कैसा था? वेस्टर्न इंडिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप टू ग्रो वाज बार्ली, और मगध में एविडेंस मिला है कि एविडेंस हैज बीन फाउंड दैट मगध हैड अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन मतलब पानी देना, एंड बिकॉज ऑफ दैट मगध हैड द ग्रोथ ऑफ राइस। आयरन इंडस्ट्री वाज वेरी गुड, वी ऑलरेडी नो मगध वाज स्ट्रांग बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ आयरन, और एक वर्किंग आयरन इंडस्ट्री का प्रूफ हमें उज्जैन में मिला भी है। ठीक है। देन कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे काशी और मथुरा। एंड लेट्स लुक एट द ट्रेड। वाराणसी हैड स्पेशल बाजार फॉर आइवरी आर्टिकल्स। आइवरी यानी हाथी के दांत से जो सामान बनता था उसका एक बहुत ही अच्छा बाजार था वाराणसी में। ठीक है। एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद कॉर्पोरेशंस मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि उस टाइम पे बिजनेस कॉर्पोरेशंस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी एंड उनके साथ राजा के संबंध, इकोनॉमिक रिलेशंस काफी अच्छे थे। एंड स्टेट का रेगुलेशन कैसे होता था? स्टेट यानी जो राज्य है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका रेगुलेशन कैसे होता था? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि द किंग यूज्ड टू अपॉइंट 27 सुपरिंटेंडेंट्स and these 27 people, they used to look over and take care of the economic activities, they used to regulate the activities. सोसाइटी कैसा था? मेगास्थेन्स के इंडिका में मेगास्थेन्स ने यह लिखा है कि इंडिया में स्लेवरी का सिस्टम नहीं है। ठीक है। और सोशल ग्रुप्स कैसे थे? देयर वर डिफरेंट पीपल प्रैक्टिसिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड लाइफस्टाइल्स इन द सोसाइटी। सम ऑफ देम वर फिलोसोफर्स, थिंकर्स, some were cultivators, agricultural people, herdsmen who used to work with cattle, pastoral communities, artisans like the craft people, people who were into art and craft, fighters, warriors for wars, battles, overseers and counselors. Overseers were administrators and counselors जो किंग को काउंसलिंग देते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत। Now, before we go ahead, let's have a look at the, देखो पिलर इंस्क्रिप्शंस तो बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। इन द मेजर वन, the first important one is the सरनाथ लायन कैपिटल। सरनाथ पिलर में लिखा है, ये अशोका ने वाराणसी के पास सरनाथ में बनाया था। ये उन्होंने बनाया था टू कोमेमोरेट द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, द धर्म चक्र प्रवर्तन। वैशाली में एक और पिलर है, उसमें 4 लायंस नहीं है, उसमें बस एक ही लायन है, उसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ। सॉरी, दीज आर द माइनर पिलर्स। मेजर में देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द रुमिंदे पिलर। उसमें क्या है? अशोका लुम्बिनी विजिट करने गए थे, दैट इज बुद्धास बर्थ प्लेस, और लुम्बिनी के लोगों को उन्होंने बोला था कि आपको टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं। दिस इंसिडेंट इज मेजर मेंशन्ड इन द रुमिंडे पिलर। इन द निगली सागर पिलर, यहां पे लिखा है कि अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ द स्तूपा ऑफ बुद्ध कोटाकमाना टू इट्स डबल साइज इन नेपाल। नेपाल में एक स्तूपा था बुद्ध, गौतम बुद्ध का, उस स्तूपा का साइज अशोका ने रिनोवेट करके बड़ा करके डबल कर दिया था। दिस इज मेंशन्ड इन द निगली सागर पिलर। ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट कि ये जो स्तूपा की बात कर रहा हूं मैं, स्तूपा में गौतम बुद्ध को कैसे डिपिक्ट किया गया है, गौतम बुद्ध को कैसे दिखाया गया है। जो स्तूपा के अर्ली स्टेजेस थे, उस टाइम गौतम बुद्ध को बहुत सारे सिंबल्स यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि उनके फुटप्रिंट्स या फिर एक लोटस थ्रोन
या फिर एक चक्र या फिर एक स्तूपा का स्ट्रक्चर एटसेट्रा, सिंबल्स वेर यूज्ड। एंड इन द लेटर स्टेजेस स्तूपा के ऊपर जातका स्टोरीज लिख दिए जाते थे। जातका स्टोरीज आर व्हाट? दे आर बुद्धिस्ट टेल्स, स्टोरीज। तो ये लिख दिए जाते थे इन द लेटर स्टेजेस। एंड व्हाट आर द मेन इवेंट्स दैट आर डिपिक्टेड इन द स्तूपास? द बर्थ ऑफ बुद्धा, द रिनाउंसिएशन, इसको महाभिनिष्क्रमा बोलते हैं, he left everything, his enlightenment and Bodh Gaya, his first sermon in Sarnath, and the Mahaparinirvan, in which he left his mortal body in Kushinagar. अब मौर्यन टाइम में कुछ केव्स भी मिले हैं, ठीक है। केव्स में क्या होता है? पत्थर का गुफा है, रॉक कट आर्किटेक्चर होता है, पत्थर को काट के आर्किटेक्चर बनाया जाता है। यूसेज क्या है? ये जो गुफाएं है दे आर यूज्ड एज विहारास। विहार वर्ड का मीनिंग होता है कि रहने का जगह। So these were used as viharas or living quarters. By whom? By monks of the Buddhist and Jain religions. कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जो इंटीरियर के वॉल्स होते थे उनको प्रॉपरली कट करके एकदम एक प्रॉपर इंटीरियर पॉलिश्ड फिनिश दिया जाता था। दे वर वेरी गुड। एक एग्जांपल है नागार्जुना केव्स, ये बिहार में है। यहाँ 3 गुफाएं हैं, देयर आर 3 केव्स। दीज आर केव्स ऑफ द मौर्यन पीरियड, ठीक है। और ये बने कब थे? दीज वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ। हु इज दशरथ? दशरथ इज द ग्रैंडसन ऑफ किंग अशोका, ठीक है। ये 3 केव क्या क्या है? एक है गोप केव, एक है गोपी केव, एक है बहायक केव और दूसरा है वेदांतिका केव। सॉरी, तीसरा है वेदांतिका केव। नाउ लेट्स लुक एट सम स्कल्पचर्स और स्टैच्यूज और आर्ट पीसेस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस आर द यक्ष एंड द यक्षिनी। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि फोक टेल्स में इन ऑल मेजर रिलीजियंस उनके फोक टेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ करते हैं ये यक्ष और यक्षिनी, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि दीदारगुंज बोल के एक जगह है पटना के पास, वहां पे एक लाइफ साइज स्टैचू मिला है एक यक्षिनी का, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट पॉटरी। मौर्यन टाइम पे पॉटरी कैसा था? ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। व्हाई? बिकॉज फर्स्टली इट वाज मेड अप ऑफ एलुवियल क्ले। एलुवियल क्ले काफी पॉलिश्ड और प्लेन होता है, ब्लैक कलर का था एंड इट हैड अ लस्ट्रस फिनिश, यानी चमकीला सा दिखता था वो एकदम। इट हैड अ लस्ट्रस फिनिश। एंड यूसेज क्या है? these were mostly used as luxury items. And what are the centers where these were found? These have been found in Koshambi and Patliputra, which is now. So that is it from the chapter on Mauryan Empire. I hope it was an informative session for all of you. You guys like the video, okay? We'll meet again in another video very soon. Until then, goodbye. Live a disciplined life. Take care and Jai Hind.